Okay, in last online lecture, we are completed MCQ from 65 to 80. ऐसे तो 81 82 हुआ था, लेकिन 81 से फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 81, MCQ number 81. The force acting between the two charges is F. The magnitude of charges and the distance between the charges are double. The force acting between them becomes NF. So what is the value of N? Okay, now initial force F is equal to K, Q1 Q2 upon R square. Now the final force F dash is equal to K, charge becomes double, 2Q1 2Q2 and distance also double, so 2R whole square. So now F dash is equal to NF is equal to 4K Q1 Q2 upon 4R square, so 4 cancel, and therefore F dash is equal to NF is equal to F, and therefore N is equal to 1. N is equal to 1, and therefore B option is right. Clear? Now 82. Okay, on each vertices of equilateral triangle, 82 number. On each vertices of equilateral triangle, the charge plus Q is placed if the force acting between any two charges is F. Okay, find out the resultant force on any of the charges. Yeah, any of charge. Okay, chalo. Equilateral triangle, A point, B point and C. ओके, किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स इज इक्वल टू एफ. किसी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बताएंगे? एफ. क्लियर? तो इसका मतलब कि आप ये दोनों के बीच में या इधर जो भी फोर्स लगे इसको आप एफ बता सकते हैं. ओके, चार्जेस क्या दिया? प्लस क्यू एंड प्लस क्यू. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज कॉल्ड FCA, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज कॉल्ड FCB. क्लियर? एंड द रिजल्टेंट in this is called FC. But FCA is equal to FCB is equal to F, क्योंकि कहीं भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच की आप फोर्स निकालेंगे वो ऑलवेज क्या होगी? इक्वल. ओके, तो किसी एक की रिजल्टेंट कैलकुलेट करनी है. ओके, सी पॉइंट की रिजल्ट कैलकुलेट करनी तो FC इज इक्वल टू, सबसे पहले तो FCA होल स्क्वायर FCB होल स्क्वायर 2FCA FCB cos थीटा. लेकिन ये सभी फोर्स की वैल्यू हमने इक्वल लिखी. सो नाउ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F इंटू F cos 60. ओके, दिस एंगल 60, तो ये भी कितना होगा? 60. क्लियर? सो नाउ एडिशन इज 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 1/2, 2 कैंसल, and therefore addition is 3F square and answer is √3F. So now resultant on C, okay, his answer is √3F and the C option is right. Option C is right. Now 83. Position vector of 2-point charges of 1 nanocoulomb H are 1 meter and 2 meter respectively. The magnitude of the coulomb force acting between them is, okay, सबसे पहले तो वेक्टर R, इसका R2 minus R1, R2 is 2 3 1 and R1 is 1 1 minus 1. Okay, now simplification is, so vector R is equal to 2 minus 1 1, okay, 3 minus 1 2, then 1 minus 1, इसका मतलब again 2, माइनस माइनस प्लस होगा ना, मतलब
2. Okay, now magnitude is equal to magnitude of r. So in square root 1 square, 2 square, 2 square, so 1 plus 4 root 9. So r is equal to 3. r is equal to क्या लिखेंगे हम 3 in meter. Okay, so now f is equal to k q square by r square. So 9 into 10 raised to 9 is the value of k. So magnetic charge 10 raised to minus 9 whole square, and therefore 3 meter whole square. So 3 and 3 cancel. Clear? 10 raised to 9, 10 raised to minus 9. So answer is 10 raised to minus. Okay, now MCQ number 84. Repulsive force between two alpha particle separated by a distance 3.2 10 raised to minus 15 meter in air. Okay, first the charge of alpha particle is equal to 2e, and therefore 2 into 1.6 10 raised to minus 19. So now 3.2 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, at a distance, so r is equal to 3.2 10 raised to minus 15 meter. So f is equal to k q square by r square, and therefore 9 into 10 raised to 9, 3.2 10 raised to minus 19 whole square upon 3.2 10 raised to minus 15 whole square. Clear? So remaining part 9, 10 raised to 9, 10 raised to minus 38, और ये ऊपर जाएगा तो 10 raised to plus 30. So answer is 90 Newton. Answer is 90 Newton. Clear? तो ये क्वेश्चन था 84. Then next question number 85. Question number 85. The force acting on 3.2 10 raised to minus 3 coulomb placed at the point in a uniform electric field is 0.128 Newton. The intensity of electric field is, okay, so now E is equal to F by Q. E is equal to F upon Q. Okay, force is given 0.128 Newton and charge is 3.2 10 raised to minus 3. 3.2 10 raised to minus 3. So now answer is, okay, पहले ये ऊपर ले जाए तो 128 upon 3.2. Okay, so now ratio is 40 Newton upon coulomb. 40 Newton upon coulomb. Okay, now 86 number. Question number 86. Three small sphere, each carrying a positive charge capital Q, are placed on a circumference of the circle of radius r to form an equilateral triangle. Okay, equilateral triangle बनेगा इससे. The electric field intensity at the center of the circle will be, okay, इसमें तो मैं नहीं मानता कि आंसर कुछ मिलने वाला है. क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसे न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किए. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट करेगा. ओके, ए बी सी, इलेक्ट्रिक चार्ज एट दैट पॉइंट क्यू, इधर क्यू, यहाँ भी क्या रहेगा क्यू. क्लियर? ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के लिए कैलकुलेट करनी है. ओके, force at point O due to C in this direction, force at point O due to B in this direction, and force at point O in this direction. Okay, but it's called, suppose it's called FC, FA,
FB. So FA is equal to FB is equal to FC is equal to KQ. Just a minute. Okay, electric field calculate करना, sorry, electric field. So EA, EB, EC. So KQ by R square. So now this distances are R and R. Okay. Okay, three equal vector at a distance 120. So resultant is 0. Resultant is 0. कैसे? तो ये दोनों की जो है रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगी और ये दोनों वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर. सो आंसर लिखेंगे आप 0. आंसर क्या लिखेंगे? 0. क्यों? तो ई ए ई बी ई सी मतलब ये सभी फील्ड, सॉरी फोर्स की जगह हम लिखेंगे फील्ड. ये सभी फील्ड की मैग्नेट इक्वल होगी, एंगल सबके बीच में होगा 120 और इसलिए ये रिजल्टेंट क्या देगा? 0. क्लियर? ओके, नाउ 87 नंबर. Question number 87. If unit positive charge is placed in a uniform, sorry, if the unit positive charge is placed in an electric field, force acting on it is, okay, सबसे पहले लिखा है 0, सेकेंड लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थर्ड लिखा इन्फिनिटी एंड फोर्थ लिखा इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, फोर्स की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F is equal to EQ. Okay. Now field on a 1 coulomb positive charge, so F is equal to EQ equal to 1. So B option is right. Force equal to electric field intensity. Okay, ये था 87. Now 88. 88. Electric field line about a negative point charge are, first option is circular anti-clockwise, second option circular clockwise, C option radial inward, D option radial outward. Okay, for negative charge C option is right, radial inward. Radial क्या होगा? Inward होगा. Clear? So now 89 number. 89 number. The magnitude of electric field intensity E is such that, and the electron placed in would the experience and the electrical force equal to its weight is given by. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है ऐसी फील्ड के अंदर कि जहां फील्ड से लगने वाली फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब फर्स्ट F इज इक्वल टू mg, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू E इंटू E. ओके, नाउ फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, so right, field intensity is equal to mg upon E. Okay, so now option A is right. First option में लिखा है mg by E और this option is right. Clear? So now question number 90. Now question number 90. Okay, an electron and proton are in a uniform electric field. The ratio of their acceleration will be, the ratio of their acceleration will be. Okay, सबसे पहले तो Fe इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? MEAE. क्लियर? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe इज इक्वल टू MEAE लिख सकते हैं. क्लियर? नाउ सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू E. ओके, फोर्स ऑन प्रोटॉन MP AP वो भी E इंटू E होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों की चार्ज इक्वल है, सो मैग्नेट ऑफ फोर्स वो भी इक्वल होगा. और मैग्नेट ऑफ फोर्स मतलब MEAE MP AP. ओके, फाइंड क्या करना है? द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन. सो नाउ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, acceleration of proton. So now mp upon me is the answer. Okay, क्वेश्चन ऐसा था, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी, पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है देन प्रोटॉन, मतलब कैलकुलेट क्या करना है? AE अपॉन AP. सो आंसर इज MP अपॉन ME. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 91. क्वेश्चन नंबर 91. ओके, two parallel plate
have an equal and opposite charge. Two parallel plate have an equal and opposite charge. When a space between them is evacuated, मतलब वैक्यूम है, the electric field between them is 2 into 10 raised to 5 volt upon meter. When the space is filled with the dielectric, मतलब insulator, the electric field becomes 10 raised to 5 volt upon meter. Okay, the dielectric constant of dielectric material is, अब देखो एक चीज है कि इसके अंदर पहले भी बताया था, वैक्यूम में जो फील्ड होती है, चलो वैक्यूम की फील्ड E1 2 into 10 raised to 5 volt upon मीटर, और डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद 10 raised to 5 volt upon मीटर. इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक रखने से फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है. क्लियर. तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू E1 बाई के. E2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 अपॉन के, एंड देयरफॉर K इज इक्वल टू, सो E1 अपॉन E2, K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 अपॉन E2. सो नो इनिशियल 2 into 10 raised to 5, फाइनल 10 raised to 5. सो आंसर dielectric constant K is equal to 2. Dielectric constant K is equal to 2. Okay, now next question is 92 number. Next question is 92. The number of electrons to be put on a spherical conductor of radius 0.1 meter to produce an electric field of 0.036 Newton upon Coulomb just above its surface is. ओके, कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो फील्ड की मैग्नीट्यूड दिए, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर. बट के एन ई आर स्क्वायर क्वांटाइजेशन वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, तो N इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपॉन के ई. ओके, the magnitude of field 0.036 is to be given a 0.1 meter. Okay, 9 into 10 raised to 9, 1.6 10 raised to minus 19. Okay, so now new simplification, N is equal to 2.5 10 raised to 5. Okay, and then B option is right. B option is right. तो ये क्वेश्चन था 92. नाउ क्वेश्चन नंबर 93. क्वेश्चन नंबर 93. An electric field is established in a space divide मतलब अवॉइड करके ऑफ ग्रेविटी एज शोन इन फिगर. ओके, फिगर में जो ड्रॉ करके दिया वो इस तरह का है. यहाँ लिखा प्लस, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड होती है. एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर साइमल्टेनियसली रिलीज फ्रॉम द मिड पॉइंट बिटवीन द अपर एंड लोअर प्लेट्स. अपर एंड लोअर प्लेट. ओके, मतलब यहाँ एक प्लेट है और यहाँ भी एक प्लेट है, मिड पॉइंट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को फ्री करेंगे. इफ TE and TP are the time taken by the electron and proton to reach to respective plate. Okay, तो ऑप्शन लिखा है TE is greater than TP, T is equal to TP, T less than TP, greater than equal to TP. Okay, हमने ये इलास्ट्रेशन जब कंप्लीट किया था तभी ये चीज़ लिखी थी कि सबसे पहले तो F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई. क्लियर. सो A इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम. बाद में हमने डिस्टेंस वाली फॉर्मूला यूज़ की थी, V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर. क्लियर. तो लिखा था कि D इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड देयरफॉर हाफ A इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर. ओके, टाइम के लिए फॉर्मूला बनानी है तो 2D m अपॉन क्यू ई टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2dm अपॉन क्यू ई. ओके, जिसकी मास ज़्यादा होगी इसको टाइम ज़्यादा लगेगा,
ओके, कैसे पता चला? तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो आपको रेशियो कंप्लीट करना है तो पहले से लिखेंगे, सपोज टी ई अपॉन क्या हो सकता है, एम ई अपॉन एम पी। किसकी रेशियो ज़्यादा होगी? तो लिख सकते हैं एम पी इज ग्रेटर देन एम ई एंड देयरफॉर टी पी इज ग्रेटर देन टी ई। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि ऑप्शन सी में ऐसा लिखा है टी ई इज लेस देन टी पी। क्लियर? तो इस तरह से आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ 94। Okay, the distance between proton and electron both having a charge 1.6 10 to minus 19 coulomb of a hydrogen atom is 10 to minus 10 meter. Okay, the value of the intensity of electric field produced on electron due to proton. Okay, तो सबसे सिंपल हो गया, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन और ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 to minus 19 and distance there 10 to minus 10 whole square. So this multiplication is 14.4, 14.4, ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 10 to minus 10। क्लियर? ये ऊपर जाएगा तो 10 to plus 20, so 14.4 10 to 10। ओके, तो 1.44 10 to 11 न्यूटन अपॉन कूलम, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पे लगेगी। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट दिस इज 95 नंबर। What is the magnitude of the point charge due to which the electric field 30 centimeter away has the magnitude 2 Newton upon Coulomb? Okay, ये फिर से वही हुआ, E is equal to k q by r square। क्लियर? ऐसी चार्ज फाइंड करनी है कि जहां आपको फील्ड 2 न्यूटन अपॉन कूलम मिलनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे? ई आर स्क्वायर बाई के, ये क्या होगा 2। ओके, इसमें 30 सेंटीमीटर अवे लिखा है, इसका मतलब 0.3 होल स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो स्क्वायर करेंगे, ओके 2 स्क्वायर होगा 9 10 to minus 2 9 10 to 9। ओके, 9 9 कैंसिल, ऊपर गया तो 2 इंटू 10 to minus 11 कूलम, and therefore answer B is right. Answer B is right. Okay, now next question is number 96. The unit of intensity of electric field. Okay, सबसे इजी रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट लिखे थे, एक न्यूटन अपॉन कूलम और सेकेंड वोल्ट अपॉन मीटर। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन होगा ए, न्यूटन अपॉन कूलम लिख के दिया है, इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, नाउ 97 नंबर। एरिया ऑफ सर्कुलर लूप मेड अप अ थिन वायर 0.2 मीटर स्क्वायर, it is placed in a uniform electric field of 2 Newton upon Coulomb, making an angle 30 degree with electric field. Flux passing through this coil is, अब देखो ये बोर्ड एग्जामिनेशन और गुड साइड एग्जामिनेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव चेक करो, ऐसी न्यूमेरिकल है और इसके लिए डायग्राम नहीं दिया। सपोज हम डायग्राम बनाएंगे, कभी डायग्राम देखिए लोग आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछेंगे। ओके, अब इस कॉइल रखी गई इस तरह से। ओके, एंगल क्या दिया 60। ओके, एंगल 60 कैसे बनता है? तो उन लोगों ने पहले भी लिखा है एंगल, ओके इंटेंसिटी
एन एरिया मेक एन एंगल 30। अब देखो ये एंगल हमको कंसिडर करना है। क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम जो दिया है इसमें ऐसा बता कि ये 30 डिग्री है, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये क्या होगा 60। और सपोज ये 60 है तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिख के थीटा 60 हम ले सकते हैं। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन डायग्राम जो बनाया बराबर है। डायग्राम के अंदर ये 30 है और ये कितना होगा 60। क्या लिखना है ई ए कॉस थीटा। ओके, ए इज इक्वल टू, तो सॉरी ई इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 0.2 एंड कॉस 60 1/2। आंसर इज 0.2 वोल्ट इंटू मीटर, या एक और भी इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ये सभी ऑप्शन राइट। क्लियर? पता चला? ओके। एक चीज़ और, बहुत बार इन लोगों ने जब पूछा तो डायग्राम से पूछा, तब ये एंगल लिख के नहीं दिया। वो लोग इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके देते हैं। अब इसमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या वो नहीं पता चलता। ये 30 है बराबर है, लेकिन आप जब परपेंडिकुलर ऐसे वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये एरिया वेक्टर होगा और ई और ए के बीच की एंगल 60 हो जाएगी। बहुत से लोग 30 लेके कैलकुलेट कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। क्लियर? लेकिन ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली याद रहना चाहिए। ओके, नाउ 98 number. A charged water drop whose radius is 0.1 micrometer is in equilibrium in an electric field. The charge on it is equal to the charge of an electron. What is the intensity of electric field? ये तो फिर से वही हुआ कि इसमें लगने वाली फोर्स mg इज इक्वल टू क्यू ई। mg इज इक्वल टू क्यू ई। कैलकुलेट क्या करना है, तो लिख से mg इज इक्वल टू ई इंटू ई, फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो mg अपॉन ई। ओके, मास दिया उसने नहीं, मास नहीं दिया, मतलब वो भी आप कैलकुलेट करेंगे। चलो, मास नहीं दिया तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब रो जी ई। क्लियर? सो ना ई इज इक्वल टू 4, पाई इज 3.14। ओके, रेडियस, तो रेडियस दी थी 0.1 माइक्रो। चलो 0.1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻7 होल क्यूब, 10⁻⁻7 होल क्यूब। ओके, डेंसिटी दी, वाटर की डेंसिटी एम के एस में 10⁻3 और सपोज जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, इजिली कंप्लीट हो जाए इसलिए क्या लेंगे 10। ओके, सो ये 3 तो है इज 1.6 10⁻⁻19। ओके, सो गेट आंसर, इसकी जो आंसर आएगी वो होगी 26.166 इंटू 10⁻1। ओके, 10⁻1, सो 261.66 न्यूटन अपॉन कूलम। ओके, ऑप्शन के हिसाब से सपोज हम आंसर देखें, सो डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि डी ऑप्शन 262 न्यूटन अपॉन कूलम। डी ऑप्शन इज 262 न्यूटन अपॉन कूलम, सर राइट आंसर। ओके, नाउ 99। Two-point charge of 20 microcoulomb and 80 microcoulomb are 10 centimeter apart. Where will the field intensity be 0 on the line joining the charge from 20 microcoulomb? Okay, ये तो न्यूमेरिकल में भी हुआ है 20 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम। क्लियर? सब यहाँ एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। ओके, टोटल डिस्टेंस इज 0.1 मीटर, दिस डिस्टेंस x, सो रिमेनिंग इज 0.1 माइनस x, रिमेनिंग
0.1 माइनस एक्स। ओके, अब एक चीज़ तो है कि यहाँ फील्ड की इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। सपोज हम यहाँ पॉइंट पी लिखते हैं, इन फील्ड की इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव, ये भी इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट तो है ही। अब मैग्नेट कंपेयर करना है, तो मैग्नेट कंपेयर करेंगे, सो E1 इज इक्वल टू E2, ये 1 और ये 2। ओके, सो E1 K 20 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली K E2 80 माइक्रो, डिस्टेंस 0.1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, K 10⁻⁻6, K 10⁻⁻6 और एक 0 0 कैंसिल कर दो तो भी चलेगा। सो नाउ 0.1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डेट इज इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। पता चला, ये इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया। ओके, दोनों साइड स्क्वायर रूट कंप्लीट करेंगे, 0.1 माइनस एक्स अपॉन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x एंड देयरफॉर 3x इक्वल टू 0.1, x इक्वल टू क्या होगा, तो रेशियो क्या लिख सकते हैं, 0.033 मीटर, 0.033 मीटर एंड दिस ऑप्शन इन डी, this option is given in D point is 0.033 meter, so D option is right. And last question, which of the following will be deflected by the electric field? मेरे ख्याल से पहले भी रिपीट हुआ है। सो ऑप्शन लिखा गामा रेस, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड एक्सरे। तो पहले भी बताते कि गामा रेस और एक्स रेज वो रेडिएशन है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, अल्फा पार्टिकल ओनली। अभी तक 100 हुए, ये मेजोरिटी जो भी पैटर्न ज़्यादा रिपीट हुए वो क्वेश्चंस करवाए हैं और भी क्वेश्चंस है, फिर से हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका, सभी थियरी, एक्सरसाइज, इलास्ट्रेशन, सभी न्यूमेरिकल्स, 100 जैसे हमने MCQ भी कंप्लीट किए हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेन चीज़ चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? कुछ भी डाउट है सॉल्व कर लो, लेकिन फर्स्ट चैप्टर ओके टोटल कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि 7 मार्क्स है कंप्लीट। ओके।